Hi, good morning, everyone. Once again, my name is Sanket. Welcome to Trinity Consultancy and Advisories on this free session that I have kept for everyone, and I hope that I will guide you best whatever I see into the markets. Lots of selling pressure has been seen in last week, and lots of people having a question regarding on Paytm IPOs, key what happened, what to do, what to not, and let's go forward and let's see the first trend of the market of the Nifty is telling me. Are you able to see the my screen, guys, on Nifty 50? Yes. The first thing first, the trend of the Nifty is broken now. I'll draw the trend line on a weekly chart also. So I'm taking this lows, connecting to this lows. Oh, sorry, I'm in drawing mode. My bad. And little bit the trend was in intact. The trend got broken over from year to year. So currently we are on a downtrend, but yes, there are little supports I have marked that market may come down to that level and it may pause for a while. It may go to the sideways now. So this is the first area of support I'm looking at, around about 16,700 to 16,300, and this level that I am able to see this, that this is a great pause of the market. The market will come here by the next week also, or in between the mid of the week, and there are lots of things. So people has been over here for a long time waiting for this Nifty trend to get resumed. So there is a lots of question. बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि यार सर ये और कितना गिरने वाला है. If you ask me really guys, मेरे को तो बहुत नीचे के टारगेट दिख रहे हैं. मेरे को तो ये 14,000 13,000 के लेवल्स भी ऊपर ऊपर मुझे दिख रहे हैं, एंड ये बहुत कुछ गड़बड़ करने वाला है. और सबसे ज्यादा पैनिक ये एफआईज वाले कर रहे हैं बहुत सालों से. अभी वो जो नया वेरिएंट जो इसमें निकला है कोरोना के, इसमें जो साउथ अफ्रीका में पाया गया है, उसकी वजह से पैनिक सेलिंग हो रहा है. बट द चार्ट इज टेलिंग यू द फर्स्ट ओनली बिकॉज दिस वीकनेस, व्हेन आई गॉट दिस वीकनेस, देन आई हैव पुट इन वन वीडियो ऑन दिस कि मार्केट यहाँ से बहुत बुरी तरह से नीचे जा सकता है. एंड let's see how it works. There are few stocks that going to be kept under the this one, but मार्केट तो पूरा नीचे है. वीकली से मुझे पूरा नीचे दिख रहा है. हाँ, if you ask me the what's my further targets, so I will say that we have upcoming resistance over here 17,000 to 17,600 to 18,000. we have first resistance. मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आने के, मतलब ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया है. मोस्टली ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया है. एंड इफ यू आस्क मी द माय बिगेस्ट टारगेट, आई विल सजेस्ट अराउंड अबाउट 14,500 के आसपास में सबसे मेरा बिगेस्ट टारगेट नीचे के देख रहा हूँ. ये नेक्स्ट ईयर में 2022 विल बी द बेरिश मार्केट फॉर द इंडियंस. ये बेरिश मार्केट में बोलूंगा तो मैं एक्चुअली ऐसा बेरिश मत समझो कि क्रैश होगा या कुछ होगा. इसका प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है. वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉफिट बुकिंग. वी डोंट हैव द क्रैश. क्रैश इसके लिए बोलते हैं. दिस वाज अ क्रैश. We saw that V-shaped rally also back again within a 1 year only and the same year. Yes, but we are not going to the crash mode. ये आपको यहाँ पे दिखने वाला है. और ये पूरा मजा, पूरा अभी मजा जो है मार्केट को शॉर्ट सेलिंग में रहने वाला है. सो मोस्ट ट्राई टू सी दैट, फाइंड सम गुड स्टॉक, गुड स्पेकुलेटिंग, और शॉर्ट्स में ज्यादा रहो. और आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग मार्केट आपको बहुत सारे डाउन साइड में पैसा बना के देगा. इफ यू आर नो वेल नोन टू द शॉर्ट सेल, make your money into the short sell in future and options. But yes, keep some stocks into the liquid. बहुत सारे अच्छे अच्छे stocks है that I want to get it known from your side. आपको एक मिनट, let me chart yes. So guys, आपकी तरफ से मुझे स्टॉक बता, मैं उसके ऊपर आपको गाइड कर सकता हूँ. नहीं तो मैं अपने मैं रैंडम स्टॉक्स में जो मेरे पास है, जो मैं देख रहा हूँ, जिनमें स्ट्रेंथ बन रही है नहीं बन रही है, मैं आपको बोलने वाला हूँ. इफ आई विल गो फर्स्ट विद द market scenario and the trend and the stock with you have,
आपके जो चार्ट्स, मुझे आपके जो स्टॉक्स में चार्ट्स के ऊपर देख के बोलूंगा कि आपको ये क्या पोटेंशियल चाहिए, क्या नहीं, और आपको क्या करना पड़ेगा. सो एनीवन अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट गो अहेड. इब्राहिम, नदाफ, आरबी, सनु, एनीवन? हाँ संगत भाई, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग इब्राहिम भाई, बोलो. भाई ये अभी टाटा का कुछ शेयर्स ले सकते हैं या शॉर्ट सेल कर सकते हैं? कौन सा टाटा वाला? कौन सा टाटा के? कौन से? टाटा मोटर्स? मोटर या पावर? देखो टाटा मोटर्स और पावर्स अभी शॉर्ट सेलिंग के लिए मैं बोल रहा था. मैंने लास्ट टाइम एक चार्ट भी अपडेट किया था ग्रुप पे. हाँ. मैंने आपको एक लेवल दिया था, ये देखो. मैंने आपको ये लेवल दिया था कि ये एक मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट है. ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो इसके नीचे पूरा शॉर्ट सेलिंग ही होने वाला है. ओके. और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में इसके लेवल के ऊपर मुझे 530 550 का अगर क्लोजिंग मिला होता था टाटा मोटर्स में, ये ट्रिपल रैलीज में निकल गया होता था. बट मुझे तो लग रहा है कि आप थोड़ा सा पेशेंसली वेट करो. मार्केट को प्रीवियस रेजिस्टेंस जो अपना सपोर्ट बन चुका है एट द लेवल ऑफ 360, लेट इट कम ओवर देयर. आपको वहां पे ज्यादा फायदा मिलेगा. देखते हैं इन बिटवीन दैट, अगर ये इन बिटवीन ये किधर बीच में सपोर्ट लेगा तो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. और रही बात अभी टाटा पावर्स की, देखना पड़ेगा. टाटा पावर अभी भी एक कंसोलिडेशन एरिया में है, जहां पे ऊपर उसका 267 का रेजिस्टेंस है नीचे, और अभी भी उसका 205 पे आसपास 200 का पूरा उसको सपोर्ट है. तो ये जोन में पूरा उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है. मैं आपको ये रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ, एंड ये इसका सपोर्ट है. तो टाटा पावर मेरे को तो लगता है कि आप ये आप मुझे पूछोगे तो आई विल प्रेफर टू दिस एरिया 181 180 का. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब 200 के नीचे भी जाएगा. टाटा पावर भी अच्छा दिख रहा है, एंड मोमेंटम मुझे डाइंग ऑफ दिख रहा है आरएसआई पे, एंड आई एम वेरी बिग फैन ऑफ द आरएसआई मोमेंटम ट्रेडिंग इंडिकेटर. तो मुझे ये थोड़ा सा वीक लग रहा है अभी. लेट द मार्केट गेट करेक्ट एंड आने दो उसको नीचे, बट आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है. नीचे आएगा तो आप ऐड कर सकते हो उसको इजीली. ओके, थैंक यू. एंड एनी अदर स्टॉक्स फ्रॉम यू गाइस? ये टाटा पावर, टाटा मोटर्स, और कौन सा चाहिए था? टाटा स्टील तो मैंने शॉर्ट ही बोला था शॉर्ट सेल के लिए. टाटा स्टील भी बहुत अच्छा नीचे आ चुका है. मैंने ये लेवल दिया था कि 1260 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगा तो देखो कैसे वन स्ट्रोक में डाउन साइड मिल गया सबको. it was very good thing that if you shorted with this you have made a very good around about 1300 के स्टॉप लॉस के आपको एक 30-40 रुपए के स्टॉप लॉस के ऊपर आपको 100 रुपए का रिवॉर्ड मिल गया. रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा था. यहाँ पे अभी थोड़ा रुकना चाहिए. मेजरली तो मैं ये टाटा स्टील को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट जोन पे आ चुका है वीकली के. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स ओवर हियर. एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक्युमुलेशन के लिए हो सकता है, नहीं तो ये नीचे का और एक जोन है अराउंड अबाउट 892 के आसपास का, 900 के आसपास का. तो वहां पे आप बाई कर सकते हो. जस्ट अ मिनट, व्हाई डज माय टाटा स्टील भी बहुत अच्छा है. ये करेक्शन हो रहा है ड्यू टू समथिंग. द एफआईज जो मेजर निफ्टी 50 के स्टॉक है उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं. रिलायंस नीचे है, सब कुछ नीचे है. मैंने कल परसों भी बोला था कि रिलायंस अगर नीचे आएगा तो आपको नीचे के लेवल्स आपको देखने पड़ेंगे. रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज. सर का क्वेश्चन था रिलायंस. सर आपका होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्री में आरबी सर? ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस के आसपास. ओके ओके, आपने कितने लेवल पे बाय किया सर ये रिलायंस? और आपका होल्डिंग क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए?
फिर मैं आपको उसके ऊपर गाइड कर सकता हूँ। रिलायंस का देखो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है 2646। ओके ओके ओके, सो कोई बात नहीं है, आप उसको होल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लेगा ये ऊपर जाने के लिए वापस से अभी। तो उसमें अभी आप एक एक चीज और कर सकते हो, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये दो एरियाज है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस से वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट अभी रिलायंस यहाँ पे। अगर ये रिलायंस यहाँ पे आता है, आपको थोड़ा सा एवरेज ऑन आउट कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2100, 2100 के स्टॉप लॉस के ऊपर आप ये यहाँ पे एवरेज करके वापस ये रिलायंस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेट्स सी। एंड रिलायंस मेरे को तो, इफ यू आस्क मी कि मेरे को अगर पूरा एवरेज आउट करना है, मुझे पूरा लेके बैठना है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, आई विल टेक दिस एरिया एज एन सपोर्ट। 1600 के आसपास में देख रहा हूँ। इन केस द निफ्टी इज गोइंग टू कम डाउन टिल 15,000 14,000 एरिया, 13,000 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब 22 के दिसंबर तक आता है, तो ये 1600 के आसपास रिलायंस भी आने के चांसेस बहुत बढ़िया है। बिकॉज रिलायंस वॉल्यूम ऑन सेल, वॉल्यूम बहुत तगड़े दिखाई दे रहे हैं उसके। एक मिनट में वॉल्यूम ऐड कर देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑन सेलिंग प्रेशर और वॉल्यूम पे थोड़ा सा दिख रहा है। आपको थोड़ा भी चांस यहाँ पे एवरेज आउट करके ऊपर निकल जाएगा, प्लीज गेट इट आउट एट अराउंड अबाउट 2500 एंड 2600 के आसपास। आपके जो बाइंग रेट है, आप यहाँ पे एवरेज करके आप निकल सकते हो, डोंट हैव टू वरी। पूरा ज्यादा से ज्यादा पूरा नीचे गया तो आपको पूरा 2100 का स्टॉप लॉस उसको मेंटेन करना है दोनों लेवल्स पे ऊपर। एंड बहुत जनों का क्वेश्चन था आईआरसीटीसी के आसपास। आईआरसीटीसी, सो आईआरसीटीसी में मैंने बोला था कि एक ट्रेडिंग रेंज में आईआरसीटीसी प्ले कर रहा है। यहाँ पे ऊपर उसका रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ पे नीचे सपोर्ट एक है। अगर ये सपोर्ट के नीचे आता है तो मैं उसको थोड़ा सा, मेरा तो मानना है कि मैं थोड़ा सा रुकूंगा इस आईआरसीटीसी के लिए, क्योंकि मोमेंटम मुझे ये आरएसआई पे कुछ दिखाई नहीं पा रहा। इट इज नॉट टेलिंग मी दैट ये जाने के ऊपर कोशिश करेगा। और थोड़ा सा मैं तो वेट करूंगा एंड आई वेट फॉर द 600 650 600 एरिया के आसपास में उसको एक्यूमुलेटिंग करना चालू कर दूंगा। और आईआरसीटीसी मुझे अभी तो फिलहाल मैं न्यूट्रल में रहूंगा, बिकॉज ये पूरा एक कंसोलिडेशन फेज में है। लेट वेट की अगर ऊपर ब्रेक होता है तो ऊपर ऊपर के लेवल के ऊपर बाय करना पड़ेगा, नीचे करा तो please let it come down to by 600 700 area and then start buying. It will be great, and this is a monopoly stock. You should have this stock in your portfolio for a long term. ये बहुत सारा आपको प्रॉफिट देके जाएगा। इसके जैसे ये स्प्लिट होके वापस से चांसेस है, ये आपको वापस से जो उसका स्प्लिट का रेट हुआ था, स्प्लिट से पहले 5000 5000 6000 जो भी था, वो रेट पे वापस जाने की चांसेस करेगा, बिकॉज ये मोनोपोली स्टॉक है और ये मोनोपोली का उसका पर आपको फायदा उठाना पड़ेगा। हाँ, पर उसका होल्डिंग थोड़ा आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। एसबीआई, ओके सर, एसबीआई का आपका रेट क्या है बाइंग का सर? एसबीआई तो देखो सर, ये अप ट्रेंडिंग चैनल में है पूरा। अभी तक इसने डाउन ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ, इसमें डाउन ट्रेंड चालू नहीं हुआ, तो सर थोड़ा सा मैं रुकूंगा, बिकॉज ये 455 टू 426 एक सपोर्ट जोन है मेरे लिए। एंड वो अगर आता है यहाँ पे रुकता है मार्केट, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। एंड यस, वी कैन हैव द टारगेट टिल 502 500 टू 520 के आसपास मेरे को एक टारगेट दे रखा है। ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा ये प्राइस निकलने के लिए, क्योंकि ये बड़ा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। इसमें से मार्केट निकलने की कोशिश थोड़ा सा हल्का ही करेगा, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर थोड़ा वीक है। बट यस, अप ट्रेंडिंग चैनल में है। जब तक ये ट्रेंड नीचे ब्रेक नहीं हो जाता अंटिल दिस एरिया 440 420, then you don't have to worry about this. We have the support again at this level, the this one SBI में। and yes, we are in RSI भी अभी थोड़ा मोमेंटम से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट ऊपर जाने के लिए 520 टू 525 550 इज एन रेजिस्टेंस। ये थोड़ा टाइम लेगा क्रॉस करने के लिए। लेट्स चेक ऑन IEX, जो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी रिकॉर्ड डेट है इसका। IEX भी यहाँ पे थोड़ा सा एक लेवल ऑफ सपोर्ट है ऑन डेली चार्ट।
ये चार्ट के नीचे ये लेवल्स के नीचे अगर मार्केट अगर जाता है 740 726 के नीचे मैं थोड़ा बेरिश हो जाऊंगा, बिकॉज द नेक्स्ट सपोर्ट एरिया विल बी अराउंड अबाउट 600 के आसपास मेरे को दूसरा सपोर्ट दिख रहा है ये लेवल्स पे. So I'll wait for the area this support to be coming up and I'll wait. अभी थोड़ा सा देखो गाइस, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है मार्केट में, और उसमें से आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक पिकअप करना है. और उसमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी आप कैसे पिकअप करोगे, देखो जो मार्केट कोरिलेशंस में देखो कि जो स्टॉक वीक है वो ज्यादा मार्केट के साथ गिरेगा. जैसे स्टील सेक्टर जो पहले बढ़ा था, सबसे पहले मार्केट टर्निंग आउट से पहले जो टाटा स्टील था, जेएसडब्ल्यू स्टील थे, बहुत सारे स्टील सेक्टर थे वो बड़े थे. अभी शायद से उसमें पहले करेक्शन वही आएगा, बिकॉज कमोडिटी सेक्टर भी थोड़ा सा हिल रहा है एंड कमोडिटी मार्केट भी वीक है उसके वजह से, एंड वो पहले थोड़े से धो ले जाएंगे. एंड टाटा स्टील वगैरह अगर आपको बहुत 900 के नीचे मिलता तो मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, बट मार्केट इज नॉट गोइंग टू गेट इनटू द क्रैश मोड, बिकॉज वी हैव वेरी गुड सपोर्ट. एंड मार्केट का एक साइकिल होता है जो हर एक 10 साल का एक साइकिल होता है, तो अभी 10 साल के साइकिल में ये कोरोना के टाइम पे हो चुका है, तो मार्केट इतना भी नीचे नहीं जाएगा कि ये रहेगा. हाँ, एक साल मार्केट थोड़ा सा बेरिश मोड में रहेगा, बट उसमें से भी बहुत अच्छे सारे स्टॉक जो आउट परफॉर्मिंग करने वाले, जो मार्केट के करेक्शन होने के बाद भी समझ में आएगा और उससे भी पहले समझ में आएगा कि ये स्टॉक गिर रहा है नहीं गिर रहा है. उसके ऊपर और एक मेरा एक नजर है यूपीएल के ऊपर. आई एम वेटिंग फॉर दिस स्टॉक. अगर ये स्टॉक थोड़ा सा एक पॉजिटिव ये दिखाता है, क्योंकि मुझे थोड़े से ये डाइवर्जेंस के ऊपर मैं भी थोड़ा काम करता हूँ, बट अभी तो मुझे फिलहाल कोई डाइवर्जेंस नहीं है यहाँ पे. एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर आ रहा है वापस से, बिकॉज ये सपोर्ट लेवल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रीवियस उसका रेजिस्टेंस था वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा, आपको चार्ट सब कुछ बोलेगा. ये देखो, दिस वाज अ प्रीवियस हाई, इट इज कम टू दैट प्रीवियस हाई एंड इट हैज स्टॉप ओवर हियर. आई विल बी बाइंग ओवर हियर ओनली. एक छोटे स्टॉप लॉस के लेवल्स की वजह से यूपीएल मुझे लग रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ बढ़ सकता है, स्ट्रेंथ आने की कोशिश बहुत करेगा मेरा. अगर इसमें अगर यूपीएल में आप पूछोगे कि मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊं, तो मैं इसमें थोड़ा सा 670 का स्टॉप लॉस में डाल के मार्केट को राइड करूंगा, बट आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट वीक हाउ द मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस. यस गाइस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड? Sanket bhai, what about Aarti Drugs? Aarti Drugs, okay. सॉरी, आरती ड्रग्स आपने बोला. आरती ड्रग्स थोड़ा सा शायद से डाउन ट्रेंड में है अभी, नहीं सॉरी कंसोलिडेशन में. एक फिलहाल अभी तो ये सपोर्ट जोन के नीचे भी जा रहा है. ये डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, बट आपको एक सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा एट दिस एरिया. इसके नीचे गया तो बहुत गड़बड़ी है स्टॉक में. 450 से लेके 408 तक, मतलब 400 से 450 तक आपको एक सपोर्ट जोन है, वहां तक ये रुकना चाहिए, आके रुकना चाहिए. यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आपको चांस अच्छा मिलेगा. ये ट्रेंड बहुत अच्छा है, यहाँ से पकड़ लिया था उसने, बट थोड़ा वीक स्टॉक है. आपका होल्डिंग अगर आपका लॉन्ग टर्म आप कर रहे हो, चेक विद द फंडामेंटल, उसका सेल्स अगर अच्छा है, प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ रहा है या कुछ हेजिंग में कर रहे हैं, तो थोड़ी दिन के बाद ये कंपनी ऊपर जाने की कोशिश करेगा. बिकॉज मैं फंडामेंटल ज्यादा ट्रैक ना करता हूँ, मैं चार्ट से ज्यादा देखता हूँ, और अब मुझे फिलहाल वीकली चार्ट उसका थोड़ा डाउन ट्रेंड में है. एक सपोर्ट यहाँ पे मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि 450 लेके 400 के एरिया में आपको बाइंग के लिए बहुत अच्छा मिलेगा. with the stop loss of 395 or 390 you can hold the stop if you are buying again. और इसका जो टारगेट यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो 492 टू 592 टू 600 के आसपास मुझे पहला उसका टारगेट दिख रहा है. ये अगर लेवल ऊपर टच करके ऊपर आता है तो. और कोई स्टॉक चाहिए इसके ऊपर आपको मार्केट ट्रेंडिंग आपको ये चाहिए? में KPIT, ओके.
KPIT पूरा एक IT सेक्टर है, पूरा लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड पे है, थोड़ा करेक्शन हो रहा है। अगर ये लेवल पे मार्केट आता है वापस KPIT यू कैन स्टार्ट बाइंग द प्रीवियस रेजिस्टेंस 338 380 के आसपास आप बाय कर सकते हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टॉक है। मार्केट इतना टूटा है तभी भी ये ऊपर जा रहा है, तो दिस इज हाउ द वीक। मैं देखो ये मैं बोल रहा था पहले कि मार्केट अगर वीक है तो सी द स्ट्रॉन्ग स्टॉक लाइक दिस। IT सेक्टर तो 99% स्ट्रॉन्ग में ही रहेगा और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश ही करेगा, बिकॉज डॉलर भी अभी पॉजिटिव हो रहा है। आपको डॉलर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, USD/INR, इसका इम्पैक्ट सीधा आपके IT स्टॉक्स पे आता है। So see this guys, डॉलर इज गोइंग अप, डॉलर 75 बन चुका है। अगर डॉलर ने इफ गिव्स न्यू हाइज अराउंड अबाउट 75 एंड अबव 76, तो IT सेक्टर विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। KPIT, TCS, Infosys ये बहुत अच्छे स्टॉक्स रहेंगे प्ले करने के लिए। So again, TCS is another point of support. जैसे अनदर पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे है, अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अगर थोड़ा और नीचे डिप देता है तो भी कोई पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस मुझे दिख रहा है ऑन RSI इंडिकेटर्स एंड इट इज अ गुड साइन ऑफ दैट स्टॉक मे रिवर्स। लेट्स सी फॉर मोर 2 to 3 सेशंस and then we'll decide how this Tata's consultancy will be working out, but target will be very good around about 37 to this gap also may also get filled easily. ये जो गैप दिख रहा है ना, फर्स्ट टारगेट तो मुझे ये दिख रहा है 3700 के आसपास, तो सेकंड टारगेट एक गैप फिल कर देगा। ये जो बड़ा जो गैप दिख रहा है ना, ये फिल कर देगा इसके ऊपर टाटा कंसल्टेंसी एंड टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी एज थोड़ा सा एक सपोर्ट जोन पे है, बट मेजरली उसका सपोर्ट जोन यहाँ पे आ रहा है 4500 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। मैं तो वेट करूंगा कि मुझे इतना हाई लेवल, मेरे को रिटेल लेवल प्राइसेस नहीं चाहिए। मुझे जो प्राइस है जो FIs लोग अगर चेस करेंगे तो आई लुक फॉर दिस एरिया टू बाय फॉर टाटा एलेक्सी 4428 4410 के आसपास। मतलब मैं इतना थोड़ा सा पेशेंस रखूंगा स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक डीप देके जाता है आई विल बी द बायर ओवर हियर बिकॉज इट्स अ वेरी गुड अप ट्रेंडिंग स्टॉक। HDFC Bank. ठीक है, ऑलरेडी मेरे HDFC बैंक्स को मैंने 2 लेवल्स मार्क करके रुके हैं। एक तो पहला लेवल ये है कि अगर 1400 के आसपास आता है तो आई बी द बायर। अगर उससे नीचे जाता है तो 1200 के आसपास मेरे को दूसरा एक सपोर्ट, अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिलेगा, जहाँ पे मैं देखूंगा कि या फिर मेरा तो मेजरली तो ये मेरे को ये लेवल चाहिए बाइंग करने के लिए। ये बहुत एक सपोर्ट जोन के आसपास खेला हुआ है, ये थोड़ा सा वीक जोन हो चुका है और इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो बेटर वे वी विल हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बाइंग एट 1200 के आसपास मैं देखूंगा। एंड दिस इज अ गुड स्टॉक दैट आई विल एक्यूमुलेट बिकॉज इसके टारगेट्स बहुत अच्छे हैं, हायर के लिए जाएंगे ये लोग because it 1200 is a very good support area for buying HDFC Bank. ये देख रहे just which stock I was looking. रुपेश भाई ने लास्ट टाइम पे मुझे एक स्टॉक दिया था होम फर्स्ट करके। होम फर्स्ट ये उन्होंने डिलीवरी में बहुत सारा अच्छा दिया था, हमने पेड सर्विस वालों को। होम फर्स्ट फाइनेंस मार्केट इतना गिरा है तभी भी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। सो दिस इज द स्टॉक वी सेलेक्ट एंड अगर ये नीचे आता है 720 के आसपास वी विल सी टू दैट वी विल बाइंग दिस एरिया अगेन एंड दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। मार्केट इतना टूट गया है 1700 2000 पॉइंट टूट गया है, but still the market the home first is at an uptrend. This is a buying
दिस इज अ स्टॉक दैट वी आर बाइंग फर्स्ट। ये 600 के आसपास से हमने डिलीवरी लेके बैठे हैं, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके वापस हम वेट कर रहे हैं कि अगर होम फर्स्ट वापस से नीचे आता है 740 720 के आसपास, विल बी द बाइंग इनटू दिस एरिया। स्टॉप लॉस विल गोज अराउंड अबाउट 700 680 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, ये बहुत अच्छा है, वो ऑल टाइम हाई देने की कोशिश करेगा ये स्टॉक। सेकेंड स्टॉक इज किटेक्स। किटेक्स गारमेंट, ये स्टॉक अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में है। जैसे ये स्टॉक ब्रेकआउट कर देता है अपसाइड में 185 190, this will be very good to buy because this stock may go around because all time high again for 220 plus 250 plus within upcoming sessions। मार्केट इतना गिरने के बाद भी ये स्टॉक भी गिरा नहीं है, so that's why I'm selecting the stock as in correlation with the market। And yes, we do have a good area around about to buy around about 190 till this area of support, and I'll keep the stop loss around about 140 and I'll ride the market. But I'm waiting for this 190 to get broke. After the 190, then I'll have straight into the upside this markets. This stock has lots of good potential as momentum is not dying off into the stock. I'm seeing into the weekly chart also. Momentum is very good intact in the same area. And this is a, मतलब आपको डिलीवरी चाहिए तो ये डिलीवरी में ये काम आपका बहुत अच्छा हो सकता है मार्केट्स में। Okay, so guys, any stocks from my end once again? Unmute yourself and just go ahead. Tata Coffee. Tata Coffee is will be the good because I need to check with the global coffee. टाटा कॉफी जो मैंने बोला था ये जो इंटरनेशनल, I don't recommend any Parvez, I don't recommend any penny stock on the trading because the penny stock will be the penny always. And in stock market there is a two things need to be understand very good, that if the penny stock will be remain penny and expensive will become more expensive। So ये सोच के अगर आप ट्रेडिंग करोगे, सोच समझ के करोगे तो आपको ये मिलेगा। देखो सिंपल सी है, 1800 को स्टॉक आपका आईआरसीटी सा उधर तब सबको एक्सपेंसिव लग रहा था, जब 5500 हो गया तभी बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। तो इट्स अ फैक्ट, ये स्टॉक में वो पेनी स्टॉक चूज करने में और इसमें एक गुड स्टॉक चूज करने में बहुत फर्क होता है। एंड इफ यू सी दिस कॉफी के ऊपर मैंने तो बात किया था, जो मैं इसके ऊपर स्टडी करके मैंने टाटा कॉफी को मैंने रेकमेंड किया था कि बहुत अच्छा है। And I have studied the Tata Coffee futures in US, and then I decided to keep Tata Coffee as for my long term for a bullish for a multi bagger के लिए मैंने ये स्टॉक सजेस्ट किया था। एंड इसका ट्रेंड तो अपसाइड में चल रहा है, ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जा रहा है। एंड देन आई विल गो फॉर टाटा कॉफी। राइट नाउ टाटा कॉफी इज hovering around about 20 एरिया ऑफ द गुड सपोर्ट। ये सपोर्ट जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये स्टॉक इंटैक्ट रहेगा। मार्केट इतना गिरा है बट स्टिल आई डोंट सी एनी दिस वन बिग करेक्शन इनटू दिस, but yes, still it is having a good support, it is having a good support, and I'll have a very good strong support and I'll be buying here। And if Tata Coffee has a target around about potential of 230 and above, मार्केट अगर थोड़ा सा पॉजिटिव में जाता है और ये कॉफी इसमें ऊपर चला जाता है यूएस में भी, तो टाटा कॉफी को पहले फायदा होने वाला है बिकॉज स्टारबक्स के अंडर टाटा कॉफी का प्रोडक्ट जाता है। So Tata Coffee has lots of good things and that's why it has a global impact। थोड़ा फंडामेंटल आपको अगर चेक करने को आता है तो टाटा कॉफी के फंडामेंटल चेक करो, बहुत सालों के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। इट हैज वेरी गुड पोटेंशियल, ये मल्टी बैगर होगा पर इट विल टेक सम 2 to 3 years। अराउंड अबाउट ये 550 600 के आसपास ये जाएगा, ये यहाँ से डबल हो जाएगा। इट हैज वेरी गुड पोटेंशियल टू गो अराउंड अबाउट इट। Yes guys, any more question, any more stock that I need to check it around it? जो मुझे स्टॉक दिखेगा कि जिसमें पोटेंशियल बन रहा है मैंने तो आपको बोल दिया। होम फर्स्ट फाइनेंस एक है, किटेक्स गारमेंट एक है, और बहुत सारे स्टॉक आएंगे, मैं आपको बोलते रहूंगा, ग्रुप पे अपडेट देता रहूंगा।
डोंट वरी अबाउट इट. इफ यू वांट टू नो अबाउट व्हाट द मार्केट डायरेक्शन, तो मैंने बोल दिया कि निफ्टी बहुत नीचे जाने की कोशिश करेगा. आई विल बी इन शॉर्टिंग मोड from December and 2022, the new year. Let's see how this new coronavirus will impact our market first. यूएस तो अभी पूरा उल्टा चल रहा है, तो आई डोंट नो हाउ अबाउट द यूएस इज गोइंग टू रिएक्ट. कल से एक बार उसने करेक्शन दे दिया है, बट अराउंड अबाउट ये यूएस मार्केट सपोर्ट जोन में आ रहा है. जस्ट अ मिनट, माय सन हैज कम. अक्षता साक्षात लगेगा. वो काही नाही साक्षात. नाही नको नाही नंतर. So US has a potential support around about at this previous resistance becomes supports, change in polarity. तो US stock पूरा पॉजिटिव में है, तो that's why don't have to worry about it. And मोमेंटम तो अभी भी इंटैक्ट है US मार्केट में, तो US मार्केट will be positive. Let's check on a gold and crude oil. Gold is trying to break out the upper trend line of this area. But it is again come back to this support area. Let's see how it react to this area. And if अगर ये सब कुछ टूट के नीचे जाता है, तो ये एक थोड़ा सा सपोर्ट जोन नीचे बन रहा है गोल्ड के लिए. ये वीकली चार्ट पे दिखेगा आपको क्लियर. एक यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मार्केट टर्न अराउंड भी हो सकता है, एक डीप देके वापस ऊपर जाएगा. बट राइट नाउ करंट एरिया के आसपास एक सपोर्ट जोन है जो अच्छा है मुझे लग रहा है, जिसके नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा गोल्ड. एंड आई थिंक सो अगर गोल्ड ऊपर आने की कोशिश करे तो मार्केट 99% करेक्शन के मोड में जाने की तैयारी में है. तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है गाइस, देयर इज नो क्रैश. अब डोंट गेट पैनिक, डोंट गेट कि मार्केट बहुत गिरेगा. नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक जो मार्केट गिरने के बावजूद भी खड़े रहते हैं, वो स्टॉक आप ढूंढो, वो स्टॉक सर्च करो. अगर आपको उस पे नहीं समझना कि ये क्या कर रहा है स्टॉक, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिकमेंड. तो मेरे को तो अभी होम फर्स्ट फाइनेंस के ऊपर मेरा थोड़ा ज्यादा फोकस है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है. किटेक्स के ऊपर एक है, देन जो और एक हैटसन एग्रो करके था, ये एक स्टॉक है, उसके ऊपर मेरा एक और एक फोकस है. ये स्टॉक अभी भी गिरा नहीं है, जितना मार्केट गिरा है उतना उससे कम ही गिरा है. एंड लेट्स सी, वी हैव लॉट्स ऑफ गुड सपोर्ट एरिया अराउंड डाउन अराउंड अबाउट इट. अगर ये नीचे आता है बाइंग करने के लिए मेरे को मजा आने वाला है. एंड लेट्स सी कि ये स्टॉक मुझे यहाँ पे बाइंग करने के लिए देता है या ये कंसोलिडेट करके वापस ऊपर चले जाने की कोशिश करेगा. इसमें व्यू ऑन बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी के लिए एक कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है तो कल इसके लिए एक छोटा सा मेजर सपोर्ट कमिंग अराउंड अबाउट 35,000 to 805. and we have a resistance coming around about 37,300. then we have around about this area of mark I have been 38,500. then we have another at 39,000. so we have lots of resistance coming around the bank nifty and nifty. तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीक सेक्टर में जा रहा है. मेजर ब्रेक ऑफ अगर ये सपोर्ट जोन होता है इसके नीचे 30,600, then bank nifty has a big room to fall till 24,500. this area of support. ये मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए. ये टूटना नहीं चाहिए कुछ भी करके. ये अगर टूट गया तो पूरा बैंकिंग सेक्टर ये हिल जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा. this is a big area of support we have, and the trend line is respecting or not, need to check. No, the trend line has got broken, but yes, minor trend is broken, but major trend is will be still up intact unless this area of support get broken of 30,000 is a major support for the bank nifty. Yes guys. Sanjit bhai, what about Star Health IPO?
it स्टार will हेल्थ be आईपीओ अच्छा है, राकेश जुनून वाला खुद स्टेक बाय कर रहा है आईपीओ। स्टार इंश्योरेंस में कैसा है देखो कि एक सिंपल सा एक फंडा में बोलता हूँ, फंडामेंटल वो याद रखो। अगर कोई भी मतलब अब वो बिगेस्ट अपना ये इन्वेस्टर कौन है वर्ल्ड का? वॉरेन बफेट। ये कंपनीज क्या करती है, उन्होंने पहले कौन सा कंपनी खरीदा था? उन्होंने पहले इंश्योरेंस कंपनी खरीदा था। उनको मालूम है 99% लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं, क्लेम करने का रेशियो सिर्फ 3 to 5% ही होता है। अभी मार्केट गिर रहा है, इसलिए जीएमपी कम आएगा। नहीं रहने दो ना सर, अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो वो बहुत अच्छा सेक्टर है सर। एसबीआई लाइफ भी देखोगे आप तो एसबीआई लाइफ इज आल्सो गुड। वो निफ्टी 50 में भी डाल दिया उन्होंने अभी एसबीआई लाइफ तो। राकेश झुनझुन वाला बहुत कम में लेके रखा है, इसलिए पूछा था स्टार। वही तो बोला ना मैंने मेरे को जिस दिन ट्रैक हुआ कि ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, देन आई एम इंटरेस्टेड टू फॉर बाइंग दैट। और उसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं सोचूंगा। एंड सी दिस इज एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे डिप दिया 500 के आसपास, आपका डबल हो गया एक साल में, वापिस से करेक्शन दे रहा है। ये प्रीवियस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट जब बनेगा तब बाय करो, सिंपल है। अभी भी एक सपोर्ट जोन के आसपास चल रहा है, बट यस इट इज अ डेवलपमेंट। ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। किसके पास पेटीएम में आपने डाला था तो पेटीएम से शायद से निकल जाओ। मोबीक्विक का भी आ रहा है तो आई विल नॉट सजेस्ट मोबीक्विक आल्सो फॉर बाइंग दैट स्टॉक्स। पेटीएम तो कल परसों रिवर्स हो चुका है यहाँ से, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैं तो बोलता हूँ कि पेटीएम के लिए थोड़ा टाइम देगा, लॉस मेकिंग कंपनी है। it will require some big time for that. पेटीएम आई विल नॉट सजेस्ट पेटीएम। और मैंने पेटीएम का आईपीओ के बारे में सजेस्ट भी नहीं किया था, मोबीक्विक भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। और इसके होल्डिंग के बारे में हाँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, श्योरली गो अहेड फॉर दैट। लेटेंट व्यू इन भाई, क्या हुआ? हेलो, लेटेंट व्यू पे अगर ये यूएस मार्केट गिर रहा है तो उसका पूरा काम उधर से आता है, तो ये भी गिरेगा या? नहीं, लेटेंट भी तो मैंने उसको पहले ही बोला था, सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा है। सिर्फ थोड़ा सा मार्केट वैल्यूएशन थोड़ा उसका कम है, बाकी कुछ नहीं था लेटेंट व्यू में। वो ओवरऑल वेरी गुड कंपनी। और एक मेरे पास कंपनी है जो मैं बहुत दिनों से उसको देख रहा हूँ, नियोजेन केमिकल करके एक है, नियोजेन केमिकल। ये इतना मार्केट गिरने के बाद भी सिर्फ एक ही दिन गिरा है और ये ऊपर ही जा रहा है। तो नियोजन में तो बेट करूंगा, नियोजन अगर ये एरिया ऑफ सपोर्ट में आ रहा था, आई विल बी बायर एंड आई विल कीप दिस इनटू दिस रेडार, दिस एरिया ऑफ सपोर्ट। ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा बिकॉज इतना वीक होगी, स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगेंस्ट द मार्केट चल रहा है ये। और नियोजन और एक है, वो एक था, कौन सा था केमिकल यार, क्लीन एंड साइंस, यस क्लीन एंड साइंस, ये एक मेरे रेडार में है। हमने थोड़ा उसको लेके रखा है बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर क्लीन एंड साइंस। सो क्लीन एंड साइंस टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी गुड। फंडामेंटली भी कंपनी बहुत अच्छा है, एक एरिया ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। अगर ब्रेकआउट करके ऊपर आता है 2300 का पोटेंशियल, ये भी मल्टी बाइगर में जाने की कोशिश करेगा। दिस कंपनी विल हैव द बिगेस्ट थिंग्स टू गो अप। ये मल्टी बाइगर जाने की कोशिश होगा इसका भी, क्योंकि ये पूरा एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में इतना बड़ा एक कंसोलिडेशन जोन है। जैसे ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, आई विल बी द बायर फर्स्ट। और ये इसका टारगेट अगर आप मुझे पूछोगे पर्सनली तो 5000 6000 के आसपास ये चला जाएगा आराम से। और उसका फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है, मैंने देखा है इसका प्रॉफिट मेकिंग बहुत अच्छा है। एंड यस दिस हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल। आई एम लुकिंग फॉर दिस कंपनी। ये थोड़ा कंसोलिडेट खत्म होने दो, और अगर इसके 2250 के भी ऊपर एक क्लोज होता है 23 के आसपास भी, आई विल बी द बायर फर्स्ट बिकॉज दिस हैज वेरी गुड
कंडीशनल एंड ये ऊपर चले जाए, एक बार कंसोलिडेशन खत्म हो गया, ये एक बार आरएसआई भी उसमें थोड़ा सा मोमेंटम दिखाएगा तो ऊपर चला जाएगा अप साइड में। साल बहुत सारे, मतलब मैंने अपनी बहुत सारे आपको स्टॉक दिए, एक तो क्लीन एंड साइंस है, किटेक्स है, होम फर्स्ट दिया है, देन न्यूजेन केमिकल करके आपको एक दिया है, वो भी एक अच्छा है। तो आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस स्टॉक फॉर द शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म डिलीवरीज फॉर दिस। इसमें मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत कम है, मेरा रिस्क भी बहुत कम है। दिस आर वेरी प्रॉफिट एंड पोटेंशियल गुड मेकिंग स्टॉक्स, जो आपका प्रॉफिट एक दो या 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल देके जा सकते हैं। हमारा मार्केट कितना भी वीक हो, स्टिल दे आर हैविंग वेरी गुड पॉइंट ऑफ होल्ड with this one stocks. Anyone guys from your end? I'll be just taking the session for not more than 10 to 15 minutes. I'll be answering your questions right now. Any questions from your end, guys? आपके कोई स्टॉक्स में आपको कोई Hello. आपको सलाह चाहिए क्या, कुछ चाहिए बोलो, मैं आपको बोल दूंगा। यस इब्राहिम। Sanjit bhai, you are told about Mazdog. मासडॉक इज वेरी गुड, मार्केट के साथ थोड़ा करेक्ट हो चुका है, वापस से ये रेजिस्टेंस वो सपोर्ट के एरिया पे आ चुका है, जाएगा ये ऊपर, पर थोड़ा टाइम लेगा वापस से, बिकॉज एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो हो रहा था, तो उसका पोटेंशियल बहुत है कि ऊपर जाएगा ये वापस से तोड़ के। Mazdok has a potential to go up. It has come to the previous support, तो ये जाएगा ऊपर। ये देखो ये अप ट्रेंड है सर, ये अगर आप ट्रेंडिंग देखोगे तो ये अप ट्रेंड चैनल में चल रहा है, तो इसलिए देखो ये वापस से पुल बैक करेगा तो वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये भी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, माज़डॉक गवर्नमेंट का है, एंड इसमें बहुत सारा पोटेंशियल आपको मिलेगा। थोड़ा सा लॉकडाउन का ये अगर कोई इम्पैक्ट इस पे आ रहा है तो छोड़ दो, पर ओवरऑल सेंटिमेंट्स मुझे इस स्टॉक पे ऊपर बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। देन अनदर स्टॉक इज Sanjit bhai, PSU banks, anything? PSU bank. ये में एक मिनट, मुझे कैनरा बैंक पहले देखने दो। पीएसयू में तो पहला मेरे को कैनरा बैंक मुझे अच्छा लग रहा है, चाहिए तो आप कैनरा बैंक पहले बाय कर सकते हो, ये एरिया ऑफ Buying सपोर्ट है। levels. यस यस यस, आई एम जस्ट गिविंग इट, ये एरिया ऑफ सपोर्ट है आपका 175 टू 150, इट्स अ वेरी गुड ऑफ बाइंग। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होगा, 120 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा पीएसयू में। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने देखा नहीं, पर उससे अच्छा मुझे बैंक ऑफ कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है पीएसयू में। बैंक ऑफ बड़ौदा सेम थिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा है, सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, आप ले सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा है, 60 के आसपास स्टॉप लॉस चला जा रहा है इसका, ये सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। यस अब थोड़ा और नीचे आ गया, 80 के आसपास आप खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस विल बी अराउंड अबाउट 60, दिस स्विंग लो, ये नीचे आपका ये स्टॉप लॉस है। और पीएसयू में ये आपका ये भी एक स्ट्रेंथ में दिखा रहा है पीएसयू बैंक्स। मेरे को पीएसयू में और कौन सा बैंक आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, एसबीआई तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, मैंने तो बोला एसबीआई के बारे में। देन व्हिच बैंक्स आर कमिंग, Indian bank, Sanjit bhai. एक मिनट मैं पीएसयू एक बार सेक्टर देख लेता हूँ, इंडेक्स सेक्टर कैसा है बैंक का। यस अभी अभी इसमें तो डेवलपमेंट मतलब ट्रेंड डेवलपमेंट तो हो रहा है। यस ये तो अभी स्ट्रेंथ बना रहा है, तो पीएसयू में शायद से अपकमिंग सेशंस में स्ट्रेंथ बनते हुए दिखेगा। पीएसयू बैंकिंग में बाइंग आने की कोशिश करेगा, बट पीएसयू बैंकिंग से होल्ड दिस एरिया ऑफ 24 टू 2224 के लेवल में थोड़ा उसका सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर इससे नीचे गया ये सपोर्ट के नीचे, तो गड़बड़ होने के चांसेस भी 99% है। इंडियन बैंक बोले थे ना आप?
Indian Bank has the same thing, same area of support over here. Same area of support पे चल रहा है. You can buy the stop loss of 94. You can hold this stock for a long term. अच्छा है ये भी. और टारगेट्स आप मुझे पूछेंगे तो ये थोड़ा सा, ये तो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेके आ चुका है यहाँ से. ये 260 का जाने के लिए कोशिश करेगा ये, बट ये थोड़ा और नीचे आने दो. यहाँ पे एक थोड़ा सा मेजर सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन के आसपास आप ले सकते हो. दिस इज अ मेजर सपोर्ट. This is a major support. Stop loss will be around about 90 on this stock. बहुत अच्छा है. भेल एक है, मैं भेल बहुत दिनों से देखा नहीं है. Yes, भेल is again coming into this support area. You can easily buy with the stop loss of 48, 49. The bigger targets will be coming in भेल will be coming around about 100 rupees. ये चांसेस है 100 रुपये जाने की कोशिश करेगा. भेल को बहुत सारे अभी इलेक्ट्रिक इंजिन जो बना रहा है अभी को ये रेलवेज के लिए, उसके लिए उसका बहुत बेनिफिट हो जाएगा. एंड आई थिंक सो ये ईवीएस के लिए भी इनका कुछ तो भी चल रहा है, बट ये कंफर्म नहीं है. अगर ईवीएस के लिए इन्होंने बहुत सारा अगर कर दिया, क्या बोलते स्मूथनेस ला दिया मार्केट में, तो ये सबसे एक बड़े प्लेयर हो जाएंगे ईवीएस के लिए. पीएसयू में पब्लिक सेक्टर कंपनी में बहुत बड़ी प्लेयर हो जाएगी. बहुत चीप रेट में मिल रहा है. आई थिंक सो ये रेट मैं तो छोड़ूंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि ये रेट मुझे मेरे हाथ से छूटे नहीं. एंड अगर मेरे को ये देखना है तो मैं टारगेट्स के लंबे देखूंगा, अराउंड अबाउट 100 टू देन 150 200 के आसपास में देखूंगा. और इसको थोड़ा वेटिंग पीरियड और होल्डिंग पीरियड थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट इट्स अ वेरी गुड पोटेंशियल टू गो अप इन दिस स्टॉक. yes guys, any few more questions from your end on stocks or any something else? Hello. निफ्टी सजेशंस. निफ्टी तो डाउन ट्रेंड में है भैया. निफ्टी तो डाउन ट्रेंड में है. निफ्टी अभी एक सपोर्ट मेरे को जो दिख रहा है फिलहाल, जो नजदीक वाला सपोर्ट है वो 16,700 के आसपास चालू हो जाता है, तो यहाँ तक ये चालू रहता है 16,470 के आसपास. दिस इज द मेजर सपोर्ट. और अभी फिलहाल तो बीच में कोई सपोर्ट नहीं है निफ्टी को मेजरली. ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में ही रहेगा. ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है 17,400 के आसपास रेजिस्टेंस पहले बना है. दूसरा रेजिस्टेंस बना है 17,800 के आसपास. तीसरा 18,000 का मेजर रेजिस्टेंस है. मार्केट में फिलहाल ये टॉप तो हो गया, ये फाइनल टॉप हो चुका है. अभी ये देखते ही ये निकलेगा नहीं निकलेगा. मार्च के पहले फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मार्च तक मैं देखूंगा. अगर मार्च के आसपास नहीं निकलता है देन वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रबल. तो ये साल भर मार्केट नीचे ही रहेगा. अगर मार्च के पहले अगर न्यू हाई देता है मार्केट, then it's okay, the market will resume to the uptrend, but not it will go to the downtrend. Cycle है, let's see, I'm waiting for that cycle to get completed. ये फर्स्ट क्वार्टर अभी दिसंबर को खत्म हो जाएगा. सेकंड क्वार्टर जब मेरा मार्च में चालू हो जाएगा, I need to get the new high in the second quarter. If not, market will be downtrend and we may see फर्स्ट. ये तो फर्स्ट एरिया तो मैंने बोल दिया अभी रिवर्सल के लिए. सेकंड एरिया ऑफ टारगेट मेरा नीचे का 15,800 के आसपास है. Third target is around about this area of support 14,500. And मेरा मेजर रिवर्सल अगर आप पूछोगे तो दिस इज माय मेजर एरिया ऑफ रिवर्सल ऑफ मार्केट. ये एरिया आने की कोशिश करेगा मार्केट 13,900 के आसपास. 14,000 इज अ मेजर सपोर्ट फॉर द निफ्टी. थोड़ा बैंक निफ्टी उसके अगेंस्ट वीक है. Yes guys, any questions from your end? Once again, a few minutes to go. India VIX, oh my god, India VIX 20 sorry इसका है 28 मेजर. बहुत लोगों को एक बिटकॉइन के बारे में जानना था. बिटकॉइन के बारे में तो मैंने बिटकॉइन बोला था कि ये बिटकॉइन बीटीसी रिवर्स होने वाला है. बीटीसी अभी गिरेगा तो बहुत सारा बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है मार्केट के ऊपर.
से देखो ये मेरा मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट मैंने बोल दिया है यहाँ पे, ये मेरे 2 सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं रुकूंगा। यहाँ पे तो मैं बिटकॉइन लेने की नहीं कोशिश करूंगा, अगर मेरे को लेना है तो आई हैव दिस एरिया एंड दिस एरिया ऑफ सपोर्ट अगेन। उससे पहले तो बिटकॉइन में हाथ नहीं डालने का भाई। एंड यस अंकित बिटकॉइन भाई में इथेरियम इथेरियम में भी बोल देता हूँ। और ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में बोलना है, डाउन ट्रेंड इसके 39,000 के नीचे डाउन ट्रेंड पूरा चला हो जाएगा। एंड यस यू इफ द बिटकॉइन गेट क्रैश ड्यू टू सम बैड न्यूज इन यूएस एंड एवरीथिंग, तो मैं तो गारंटी बोलता हूँ ये जो एरब सपोर्ट है 23,000 का, ये आपको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा बिटकॉइन के आसपास। एंड और ये लास्ट वाला तो यहाँ पे है एक ट्रेंड रिवर्सल एट 19,000 20,000, तो ये मैं तो बोलूंगा यार यहाँ पे आएंगे तो यार मैं तो क्या बोलते हो पूरा सोना बिना बेच के यहाँ पे डाल देने का यार। ये तो ये यहाँ पे अगर ये बहुत बढ़िया लेवल से दोनों। इथेरियम इधर क्या क्रिप्टो, इथेरियम ये अभी रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। मेरे को तो लगता है इथेरियम का ये एरिया आ सकता है, आपको 3,000 का एरिया दिख सकता है आपको इमीडिएट में। तो ये दिस इज नॉट एन सपोर्ट आई एम टेकिंग। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस ये सपोर्ट एक दो बार ले चुका है, ये अभी तीसरी बार मुझे तो नहीं लगा बिटकॉइन टूटेगा तो ये भी शायद से टूट के नीचे आएगा। एंड इट हैज अ गुड सपोर्ट ओवर हियर ओनली एट दिस एरिया। नो ये तो यहीं पे आने की कोशिश करेगा, इन बिटवीन देयर इज नथिंग टू स्टॉप इथेरियम। अभी एक फिलहाल एक सपोर्ट तो ले चुका है, बट ये कितना स्ट्रांग होगा ये मुझे मालूम नहीं ये एरियाज में। बट अगर ये टूट जाता है तो ये सीधा ये आपको 3,000 ही दिखेगा, 900 पॉइंट का तो आपको करेक्शन मिलेगा इथेरियम में। और ये जो मुझे डाइवर्जन जो दिख रहा है हमेशा, तो ये स्लो ऑफ कर रहा है मार्केट्स के ऊपर। RSI is giving me the diversion, is trying to tell me that it is not going to break it easily. So yes, momentum नहीं है इथेरियम में। So guys, any few more questions from your end? Any stocks, anything that कुछ भी हो बोलो, गलत होगा तो भी बोलो, डोंट वरी। सब कुछ यहाँ मार्केट में सब जन गलत हो जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। अंकित भाई कुछ हाँ, क्रिप्टो कौन सा कॉइन लेना है अगर डिप कर जाता है तो, जो मल्टीप्लायर होगा? जो मल्टीबैगर होगा तो बिटकॉइन ही होगा भाई, क्योंकि बिटकॉइन में ही ताकत है। बिटकॉइन में ले लो, आपको फ्रैक्शंस पे आप ले सकते हो बिटकॉइन चाहिए तो आप। बाकी तो मुझे इतना मैंने क्रिप्टोस के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं किया, पर मैं जब से मैं देख रहा था क्रिप्टो क्या मैंने सोच रहा था, बट क्रिप्टो ये इथेरियम इथेरियम मैंने तो इतना देखा नहीं है। पर्सनल सजेशन फॉर न्यूबीज हु आर ट्रेडिंग इन इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। परवेज कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड कम अप ऑन दिस क्वेश्चन। हेलो, आपके उसके ऊपर क्या चाहिए, मतलब मतलब मैं उसको क्या सजेशन दूं, मतलब आपको क्या करना है, ट्रेडिंग इंटरडे ट्रेडिंग इन ऑप्शंस और समथिंग एल्स? ऑप्शंस देखो परवेज भाई, मैंने जो अभी ऑप्शंस का क्लास जो लास्ट वीक किया था उसके ऊपर मैंने यही गाइड किया था कि पहले मिस्टेक्स क्या होता है मार्केट में, दूसरी बात फिर ये ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपको मार्केट के डायरेक्शन में बोल दे। मतलब एक सिंपल हो, मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ एंड इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। यस, अगर ये मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग करना है नहीं करना है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सपोर्ट है। उस दिन में जो पुट दे रहा था ये लेवल ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मैं दे रहा था कि मुझे मालूम था ये अगर नहीं टूटेगा, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एफआई इज सेलिंग कंटिन्यूअसली, तो आई नीड टू बेट ऑन पुट्स। हाँ, जहाँ पे मुझे सपोर्ट मिला वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैंने कॉल पे स्कैल्प किया, बाकी तो पूरा पुट पे मैंने किया। पर बहुत सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं, जैसे मेरा जो जो मेरे स्ट्रेटेजीज होते हैं
वो बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज होता है, या कभी कभी मैं कैंडल सिक्स प्राइस एक्शन के ऊपर। हाँ, जो मैंने ऑप्शन कोर्स जो मैंने डेवलप किया है उसके ऊपर मैं आपको, वो जो कोर्स में है ना, एक तो पहली बात, एक तो स्ट्रेटेजी, सिस्टम बेस्ड स्ट्रेटेजी है। जिस दिन आपको सिग्नल मिलेगा उस दिन आपको ट्रेड करना है, और अब जो जिस दिन मार्केट पूरा साइडवेज होता है, कंसोलिडेट होता है, उस दिन आपको सिग्नल्स ही नहीं मिलेंगे उसके ऊपर। सो बेसिकली कोर्स अटेंड करो, आपको कोर्स में बहुत सारे आपके क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्री हो जाओगे, फिर आपको ट्रेडिंग इजी वो लग जाएगा उस टाइम पे। और वो ग्रीड और फियर के चक्कर में आप गिरोगे नहीं उसके में। पहला तो वो ग्रीड एंड फियर है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में आपको अगर काम करना है तो आपको कंसोलिडेशन मार्केट से बचना है। तो वो मार्केट आपको समझ में आ गया तो आप, यू आर द विक्ट्री यू हैव इन योर हैंड। तो मोस्टली ये जो 99% ये जो कंसोलिडेशन फेज हुआ यहाँ पे 99% लोग फंसे हुए थे यहाँ पे, और शायद से बैंक निफ्टी में भी फंसे हुए थे। ये कंसोलिडेशन फेज से ट्रेडिंग कैसे करना नहीं करना है, वो मेरे आपको कोर्स में आपको समझ में आएगा। एंड यस, आपको टाइम लगेगा, बट यस वो सिस्टम में जनरेट जब आपको सिग्नल देता है, श्योर शॉट आपको ट्रेडिंग करने के लिए मजा आएगा, और वो डायरेक्शन ट्रेडिंग देता है। एंड आई डू द डायरेक्शन ट्रेडिंग। और साइड पे अगर जाता है, आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई विल जस्ट वेट। नहीं तो मैं सीधा मैं ऑप्शन का हेजिंग करके छोड़ देता हूँ साइडवेज मार्केट में। यस, कोर्स में आओ, कोर्स में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। आपका आपके जो ट्रेड्स है, मेरा कोर्स का फी एक 4 to 5 सेशंस में भी आपके प्रॉफिट आपको पूरा देके जा सकता है। बट यस, यू नीड टू फॉलो द रूल्स ऑन दैट कोर्सेस, ऑब्वियसली। निफ्टी तो पूरा डाउन ट्रेंड है, लेट्स सी। थैंक यू। आई थिंक सो आई नीड टू close this session. I need to wait over here. We'll meet on the new session, new topics. आप group में कुछ आपको चाहिए तो you can put down into the personal thing into the groups. Will be shared by me and Rupesh sir. We have lots of very good experiences, and let's move forward into this. And thank you for this attending session. I hope I have cleared everyone doubt. And we'll meet you at the next sessions. Till then, next time, thank you once again. My name is Sanket Patange from Trinity Consultants and Advisory.